بھائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کانفرنس میں شریک سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک لحاظ سے یہ کانفرنس بہت خاص کریں گے، یہ کوشش ہماری جاری رہے گی۔ کچھ جیمرز بھی لگائے گئے ہیں مگر ہم بھی پرانے کھلاڑی ہیں، کچھ نہ کچھ جگاڑ نکالیں گے آپ کے لیے۔ کچھ آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے اور جلد ہی ہم کنیکٹ کر پائیں گے۔ جس طرح ہی ہماری ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ کرے گی، میں اسی طرح ہی آپ کو بتا دوں گی۔ کچھ تاریں کاٹ دی گئی ہیں، تاروں کو کاٹنا ویسے چوہوں کا کام ہوتا ہے، مگر اب کوشش کریں گے کہ ہم ان کو پھر سے لیں۔ بلاتے ہیں جناب فرحت اللہ بابر صاحب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کچھ ہی دیر میں ہم ان کو پھر سے لیں گے۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام اکابرین، خواتین، حضرات، یہ جو کچھ ابھی آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کی تقریر، اس میں رخنہ ڈالا گیا، اور یہ ٹیکنیکل ہچ نہیں ہے، یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی کارروائی ہے جو ہمیشہ سے یہ کرتے آ رہے ہیں اور جن کو سپریم کورٹ نے 2019 کے اپنے فیصلے میں لکھا کہ دیز آر دا نیبولس ٹیکٹکس، یہ نیبولس ٹیکٹکس ہیں ٹو اسٹائفل ڈائسینٹ اینڈ ٹو اسٹائفل فریڈم آف ایکسپریشن۔ اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ دوز ہو تھنک that they are serving a higher purpose by these nebulous tactics, they are gravely mistaken۔ تو آج جن لوگوں نے اور جن قوتوں نے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کو ان نیبولس ٹیکٹکس کے ذریعے اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں برملا کہتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، لیکن آج جو یہ نمائندہ اجلاس ہے یہاں، یہ آسمہ جہانگیر کی یاد میں، اور آسمہ جہانگیر جو تھی، she was the hope of the people of Pakistan, she was the thread passing through the beads in this country، جس نے آپ جیسے لوگوں کو، جو آپ سب ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، آپ کو جوڑ کے رکھا۔ She was the voice of the voiceless، تو یہ وائس دبائی نہیں جا سکے گی۔ She gave voice to the muted turbulence of human spirit, and every human spirit has a turbulence inside. The only thing is that the turbulence is muted.
Asma Jahangir gave voice to the muted turbulence of human spirit. आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। मुनीर, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब भी मियाँ साहब लाइन पर आ जाए मुझे बता दें ताकि मैं जगह छोड़ दूँ। आज हम आसमा जहांगीर की जिंदगी का जश्न मना रहे हैं, उनकी मौत का मातम नहीं, उनकी जिंदगी का जश्न, बिकॉज देयर वाज सो मच in her life to celebrate, not once, not twice, but many times over. वो कौम के ज़मीर की आवाज़ थी और आज जो यहाँ से आवाज़ें उठेंगी वो भी कौम की ज़मीर की आवाज़ है, क्योंकि आप लोग सब यहाँ आसमा जहांगीर के नाम से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज आसमा जहांगीर की बहुत कमी महसूस हो रही है। हम देखते हैं कि पार्लिमान पर यलगार है, सिविल सोसाइटी पर यलगार है, सियासी जमातों पर यलगार है, चारों तरफ यलगार है। आसमा जहांगीर की एक तवाना आज़ाद आवाज़ थी। क्या बेहतर होता, क्या खुशकिस्मती होती अगर वो आवाज़ आज जिंदा होती। लेकिन मैं समझता हूँ, मुझे यकीन है कि वो आप लोगों की, जिस तरह ये नुमाइंदा पार्लिमान है, ये आप लोगों की जो आवाज़ है वो वही आवाज़ है जो आसमा जहांगीर की आवाज़ थी। इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए और ये जो नेबुलस टैक्टिक्स हैं इनसे घबराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि 5G वार शुरू हो गई है। ये कहते हैं कि मीडिया वाले और सियासी जमातें रियासत के ख़िलाफ़ 5G वार कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि रियासत और रियासत के इदारे जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ 5G की जंग शुरू की है। और वो कैसे, मैं 2 मिनट में आपको बता दूं, एक नई जंग शुरू है। और वो जंग ये है कि पहले पार्लिमान पर मुंतखब वज़ीर आज़म को और मुंतखब नुमाइंदों को ऐवान सदर के ज़रिए 58(2)B के ज़रिए बर्खास्त कर दिया जाता था और उस बर्खास्तगी के अमल को अदलिया से नजरिए ज़रूरत का कफन पहनाया जाता था। लेकिन आपने 18वीं आईनी तरमीम के ज़रिए वो रास्ते बंद कर दिए। 58(2)B का रास्ता बंद हो गया, PCO जजेस का रास्ता बंद हो गया। लेकिन साजिशी अनासर बाज नहीं आए। जब उन्होंने देखा कि 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में एक हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, इंतखाबात हो गए, दूसरी हुकूमत ने भी 5 साल पूरे किए, इंतखाबात हो गए, तो उनको खटका लगा कि अगर ये सिस्टम चलता रहा तो उनकी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी। चुनांचे एक नया फार्मूला 5G जंग शुरू हो गई और 5G जंग अवाम के ख़िलाफ़, पार्लिमान के ख़िलाफ़ इस तरह शुरू हुई कि अदलिया के कंधे को इस्तेमाल किया गया। पहली मुंतखब हुकूमत वज़ीर आज़म को घर भेजा गया अदालत के ज़रिए, दूसरा वज़ीर आज़म आया उसी पार्टी का, उसी हुकूमत का, उसको भी घर भेजने वाले थे तौहीन अदालत में, लेकिन इंतखाबात आ गए। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और आपने देखा कि धरना हुआ, लेकिन धरने से मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि पार्लिमान ने सब में खड़े होकर कहा कि मियाँ साहब आप लीडर ऑफ द हाउस हो, हम आपको इस्तीफ़ा नहीं देने देंगे। फिर आपने देखा कि फैज़ाबाद पर धरना हुआ, प्रेशर डाला गया, फिर भी काम नहीं बना, तो फिर अदालतों के ज़रिए पैनामा गए और तनख्वाह वसूल नहीं की अपने बेटे से, उस वज़ीर आज़म को भी घर चलता किया। So what has happened is a new paradigm कि जिसमें
अदालतों के ज़रिए, क्योंकि 58(2) भी ख़त्म, PCO जजेस ख़त्म और नजरिए ज़रूरत का कफन ख़त्म, तो नया रास्ता खुला। और अब इस नए रास्ते के साथ एक और रास्ता है, और वो ये है कि मिलिटेंट तंजीमों की सरपरस्ती करके उनको मुंतखब सियासी हुकूमतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें और बॉर्डर के क्रॉस अपने सिक्योरिटी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो मैं आपको ये वार्न करना चाहता हूँ that we are faced with a new challenges to democracy, new challenges to parliament, new challenges to the media, new challenges to the civil society. और ये क्या वजह क्या है? Why all is this happening? मैं समझता हूँ कि जिस तरह पहले भी सेशन में कहा गया, ये रियासत सिक्योरिटी ड्रिवन स्टेट है, इट इज़ नॉट अ वेलफेयर ड्रिवन स्टेट। और इस सिक्योरिटी ड्रिवन स्टेट में द एलिफेंट इज देयर। अनलेस वी ड्राइव आउट द एलिफेंट, पाकिस्तान का सियासी और कानूनी ढांचा इस जमहूरियत को उठा नहीं सकेगा, because there is an elephant in the room. Therefore मेरी नज़र में सियासी जमातों को, सिविल सोसाइटी को, वकला को और आप सबको जो पहला काम करना है, to drive the elephant out of the room. और ये एलिफेंट ही की मौजूदगी है कमरे में, जिसकी वजह से कि आप देखते हैं, जिस तरह पहले भी बात हुई कि अली वज़ीर की ज़मानत नहीं होती, और ये एलिफेंट इन द रूम भी है। यहाँ मुझसे पहले मालिक बलोच साहब ने बलोचिस्तान में ज़मीनों की बात की, यहाँ जो वकला साहब तशरीफ़ रखते हैं, मुझे इत्तला आई है कि मियाँ साहब लाइन पर आ गए हैं। आई शुड नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मियाँ साहब को बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फरतुल्लाह बाबर साहब। आपने बड़ी अहम बात की कि एलिफेंट इन द रूम पे बात करनी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। एक बार फिर हमने लंदन से कनेक्ट किया है, इस बार उम्मीद है कि हमारा नाता जुड़ा रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ।